Hi everyone, myself Ishika Sharma, and today we are going to study the chapter number 1 of Geography Social Studies, class 7th, that is Environment. तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. Dug up का मतलब क्या होता है? खुदा हुआ. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterfly is gone forever. तो वैकेशन के बाद क्या होता है, रवि जब वापस स्कूल जाना स्टार्ट करा तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास वाला जो प्लेग्राउंड है वो डगअप है, मतलब खुदा हुआ है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है. नाउ ही वॉज सैड, वो बहुत सैड था क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जिसमें बहुत सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स और बटरफ्लाइज होती थी वो अब उसको वापस नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए चला गया है. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. In the assembly, the principals too sadly observed, see how our environment is changing. तो environment क्या होता है? आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, that is our environment. हमारी surroundings में जितनी भी चीज़ें होती हैं, that is our environment. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" Whatever you see in your surroundings, said the teacher. तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि environment मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, that is known as environment. Alright? So Ravi thought aloud that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that the open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of environment. तो उसने ये सोचा कि जितनी भी मेरे आसपास सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें environment है. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live in. तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, तो यू कैन राइट इट, अंडरलाइन इट, कि एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी लाइफ का. एयर हो गया, लैंड हो गया, खाना हो गया जो हम खाते हैं, वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं. Yes, said teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees. तो अब एनवायरनमेंट भी दो टाइप का होता है, एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो. And others are made by people, like for example roads, cars, clothes, books, etc. are human made. Okay, now work in pairs. Make a list of your with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. तो इस एक्टिविटी में दो दो के पेयर बनाने हैं और जो चीज़ें नेचर ने बनाई है उसकी लिस्ट बनानी है और जो चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई है उसकी लिस्ट बनानी है. How do human beings modify their natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. तो आप लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था. अर्ली ह्यूमन्स केव्स में रहते थे, कोई घर नहीं रहता था, कोई चूल्हा, कोई इंडक्शन, कोई माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी. बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों ने अपने हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को वो कर लिया है. कहीं ना कहीं इसकी वजह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करा है, अच्छा इफेक्ट भी हुआ है, कहीं कहीं बुरा इफेक्ट भी हुआ है, वो सारी चीज़ें होती हैं. Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? asked Iqbal. It's all because of our needs. तो हमारा environment क्यों change हो रहा है, क्यों उसको affect हो रहा है? क्योंकि हमारी needs बढ़ती जा रही हैं और हम अपने needs के accordingly उसको change कर रहे हैं, उसको harm कर रहे हैं. They are increasing day by day, are therefore modifying at times, even destroying our natural surroundings, the teacher replied. From the above conversation, you understand that place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. तो ये रही environment की definition. It is a combination of natural and human made phenomena. मैंने आपको बताया था environment में human made भी होता है और natural phenomena भी होता है. The natural environment refers to the biotic and abiotic conditions. अब biotic क्या होता है? Biotic means all the living things और abiotic means all the non-living things. यहाँ पे blue और orange box में दिया हुआ है. Biotic means the world of living organisms, plants and animals. Abiotic means the world of non-living elements, example land. ऊपर हम components of environment देख सकते हैं. Natural है, human made है and
ह्यूमन के भी अलग अलग हैं, इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. अब environment वर्ड कहाँ से है? फ्रेंच वर्ड है environner. Environner मीनिंग neighborhood. Environner का मतलब होता है neighborhood. Natural environment. Land, water, air, plant, animals comprise the natural environment. जो चीज़ें नेचर ने बनाई हुई हैं, नेचर की तरफ से आई हुई हैं, उन सबको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। वी आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो आपने प्रीवियस क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर पढ़ा था। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज। तो लिथोस्फीयर मतलब लैंड जो होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. तो you can underline the definition of lithosphere. तो lithosphere क्या है? टॉप लेयर है अर्थ की और वो कवर्ड है रॉक्स और मिनरल्स से और थिन लेयर है उसके ऊपर सॉइल की. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys. तो इसके landforms हैं अलग अलग टाइप के, जैसे plateaus, plains, mountains, ये सब हो गया. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. तो landforms कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? continents में भी और ocean floors पे भी. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो lithosphere की वजह से हमको रहना, खाना, forest, human settlements, grasslands, mineral wealth सब कुछ ये हमको lithosphere की वजह से मिलती है. द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रो का मतलब पानी होता है और जो डोमेन होता है वाटर को उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज. जितना भी वाटर रिलेटेड होता है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है. और वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं? रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर होती है जो सराउंड करती है अर्थ को. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का वो एटमॉस्फेयर की लेयर को होल्ड करके रखता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. तो हार्मफुल रेज जो यूवी रेज हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करता है. और जो हीट होती है स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. आप लोगों को पता होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% इज़ नाइट्रोजन, 21% इज़ ऑक्सीजन एंड 1% इज अदर गैसेज और वेपर्स वगैरह ये सब होते हैं. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. तो जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस होते हैं. प्लांट एंड एनिमल किंगडम. प्लांट और एनिमल किंगडम को हम बायोस्फीयर बोलते हैं. दोनों मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं. और द लिविंग वर्ल्ड. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. तो ये क्या है? नैरो जोन ऑफ द अर्थ है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब इंटरैक्ट करते हैं. इकोसिस्टम. इट इज़ एन सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरैक्शन की वजह से विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव और लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं इकोसिस्टम में बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल से. Coming to what is ecosystem. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer explained, "We get no rains. We see only keekar मतलब कंकर and sand as far as the eyes can see. But you can also find camels," said Ravi. तो रवि ने बताया कि वहाँ पे camels भी होता है. Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." उसने बोला सिर्फ camels नहीं, अदर insects भी देखने को हमको मिलेंगे.
Ravi wondered why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place. तो फिर रवि ने सोचा कि लोग जो दूसरी दूसरी अलग अलग जगह रहते हैं तो ये वेरी क्यों करते हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? Oh yes, very much. So the teacher replied, all plants and animals and human beings depend on their intermediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. जितने भी प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो ये जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में इसकी वजह से इकोसिस्टम फॉर्म होता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? Yes. We will study the blue box. On 5th June, the World Environment Day is celebrated. तो हर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. बार्टर सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. तो जैसे दो लोग हैं, एक को गेहूँ बेचना है और दूसरे को टमाटर बेचने हैं और एक दूसरे को ये चीज़ें चाहिए भी. तो विदाउट द यूज़ ऑफ मनी दे विल एक्सचेंज इट. तो जब जो ट्रेड होता है बिना एक्सचेंज ऑफ मनी के उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. ये पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था. अभी के लिए फ़िलहाल ये जनरली यूज़ नहीं होता है. आई डोंट नो, शायद थोड़े बहुत विलेजेस में मे बी अभी भी थोड़ा बहुत चलता हो, बट अब मनी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है. ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और जो तरह की नीड होती है उनको उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. अर्ली ह्यूमन्स ने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स में अडेप्ट करा था. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. वो किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करते थे, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करते थे. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops. तो ह्यूमन्स ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, चेंज करना सीख लिया, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना सीख लिया. तो उस हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं. They learned to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation became faster. फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो गया था, फास्टर एंड फास्टर होता गया. कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मिलती गई लोगों को. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. तो जुडिशियल वे, हारमोनियस वे में हम लोगों को अगर हमें एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना भी है तो हमें जुडिशियस वे में करना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को हार्म हो रहा है हमारी वजह से, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. अदरवाइज़ आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम आएगी. Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her homestead during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, and activities of the people and places they visit during the holidays. और आई होप आप लोगों को इसके जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, एनवायरनमेंट चैप्टर का, आ गया होगा. वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट.